Hello, students. So let's move to the next part of the story. I hope you understood the last part which I explained. Okay, on this day, it was Papa who rose the occasion. Who rose the occasion means आप देख लीजिए लिखा हुआ है Papa put his panic aside and dealt with the situation calmly. Now, what happened? You remember that there was a knock at the door and the Nazi party member was about to come, and now the what happened, Papa Huberman, who just was thinking how to handle this situation very calmly, he rushed to the basement door and threw a warning down the steps. So he when he just heard the knockdown, he rushed to the basement and he just gave some hints to the Max to handle this situation. When he returned, he spoke fast and fluent. Look, there is no time for tricks. We could distract him 100 different ways, but there is only one solution. He eyed the door and summed up nothing. Okay, he came back and said we have so many different ways. We have so many methods to distract the Nazi party members, but now this time we don't have any time, or we do not have any moment to do all these things. So there is no idea right now, nothing, we can't do anything. That was not the answer Rosa wanted. Her eyes widened. Nothing, are you crazy? The knocking resumed. Okay, so but Rosa was surprised to hear the reply of the Huberman. He wanted some plan. उसने बोला अभी कुछ नहीं कर सकते, तो रोज़ा बहुत सरप्राइज हो गई. उसने बोला आप क्या करना है? तो उसने बोला मन में सोच रही थी, आर यू क्रेजी, आर यू मैड, वट यू आर सेइंग. द नॉकिंग रिज्यूम्ड. फिर नॉक हुआ डोर पर. पापा वॉज स्ट्रिक्ट. नथिंग, वी डोंट इवन गो डाउन देयर, नॉट केयर इन द वर्ल्ड. अब हमें कोई नहीं बचा सकता और हम अब नीचे नहीं जा सकते, बेसमेंट में नहीं जा सकते. Everything slowed. Rosa accepted it, clenched with distress. She shook her head and proceeded to answer the door. Okay. Now सब कुछ जैसे एक तरीके से everything slowed, मतलब now सब कुछ थम सा गया. किसी का माइंड काम नहीं कर रहा था इस समय. रोज़ा एक्सेप्टेड इट. अब रोज़ा को ये सिचुएशन एक्सेप्ट करनी पड़ी. अब यहाँ पे देखिए, टेंस विथ फियर एंड एंग्जाइटी. अब वो बहुत ही परेशान हो गई, बट उसने ही अग्रीड टू हर हस्बैंड एंड शी वेंट टू ओपन द डोर. लीजन, पापा वॉन्ट जस्ट स्टे काम, अंडरस्टैंड. पापा ने अपनी बेटी को भी समझाया, लीजन को भी, कि नाउ यू जस्ट स्टे एंड काम, बस रिलैक्स हो जाओ. यस पापा. शी ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ ब्लीडिंग लेग. सो उसने बोला ठीक है, ओके पापा. एंड शी जस्ट now she was busy in seeing his hurted knee. At the door, Rosa was still asking the meaning of this interruption when the kindly man noticed Liesel, the maniacal football player. He grinned. How is the knee? You don't usually imagine the Nazi being too chirpy, but this man certainly was. He came in the maid as if to crouch and view the injury. Okay, so when the Rosa was just going to ask for this interruption, मतलब नाजी पार्टी मेंबर से जो डोर पे था उनसे पूछने जा रही थी कि व्हाट इज़ योर पर्पस टू एंटर इन दिस हाउस, तभी उसने जो वही पार्टी मेंबर जिसने इसको देखा था वो फील्ड में, व्हेन लीजल हर्ट हिज नी, then then that party man was asking to the Liesel, how is your knee? He grinned. Grin means क्या होता है? With a smile. उसने पूछा आपका नी कैसा है, आपका घुटना कैसा है. Suddenly what happened, जो ये नाजी पार्टी के मेंबर थे, that were usually not chirpy, they were very serious. यहाँ पे बट लिखा है बट दिस मैन certainly was. लेकिन ये जो इंसान था, जो ये नाजी पार्टी का मेंबर था, ही वॉज क्या था, ही वॉज क्वाइट हम्बल एंड वेरी कंसर्न टू द अदर पीपल. जबकि सोल्जर्स वगैरह, पुलिस वगैरह क्या होते हैं, वो थोड़े सीरियस होते हैं और ज़्यादा बात नहीं करते हैं. और वो ही केम इन एंड मेड इज एज इफ द क्राउच एंड व्यू द इंजरी. वो आया, झुक के उसकी चोट को देखा उसने. क्राउच मीन्स क्या होता है, बेंट होना. ठीक. डज ही नो, लीजल थॉट, कैन ही स्मेल वी आर हाइडिंग अ जू. अब लीजल के दिमाग में बातें चल रही. देखिए जो कर्सिव में लिखा है, डैट मीन्स दैट लीजल वॉज थिंकिंग इन हिज माइंड कि कहीं इसको पता तो नहीं चल रहा, कहीं इसको कुछ समझ में तो नहीं, कोई इसको हिंट तो नहीं मिल गई. Papa came from the sink with a wet cloth and soaked it onto the Liesel knee. Now, what was her papa was trying to do, that he was behaving like a normal
पर्सन थे, देर वॉज नथिंग लाइक एनीथिंग, मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे थे कि उनको किसी भी तरह का सस्पेक्ट ना हो। तो वो एक टॉवल लेके आए उसमें सोक्ड करके पानी में, और उसने उसकी नी को साफ करने के लिए। डज इट स्टिंग, स्टिंग का मतलब यहाँ पर पेन है, क्या दर्द हो रहा है। सिल्वर आई व केयरिंग एंड काम, सिल्वर आई का मतलब यहाँ पे आपके कहेंगे कि जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं उनकी आइज़ को सिल्वर आई बोला जाता है, कि मतलब उस समय इस पापा की जो आइज़ थी एज अ फादर, बीइंग अ फादर, वेरी केयरिंग एंड काम थी। द स्केयर इन दैम could easily be mistaken as concern for injury, और उनकी आंखों में जो डर था वो एक तरह का हो सकता है, लग सकता है कि उनकी बेटी को चोट लगी, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा कंसर्न थे। रोज़ा कॉल्ड अक्रॉस द किचन, इट कांट स्टिंग इनफ, मे बी इट विल टीच हर लेसन। एंड नाउ रोज़ा वॉज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल मदर, और वो किचन में से चिल्ला रही है, नहीं नहीं इसको अब दर्द नहीं होगा, शायद इसको एक इस चोट लगने से इसको कुछ समझ में आ जाएगी, कुछ सीख जाए। The partyman stood and laughed. I don't think this girl is learning any lesson out there, Frau Huberman. I think she teaches a lesson to all the boys. Am I right, young girl? तभी वो जो पार्टीमैन था उसने इंटरप्ट किया, बोला कि नहीं नहीं, इस बच्ची ने कुछ नहीं सीखा, जबकि ये बच्ची कुछ उन लड़कों को सिखा के आई है। ठीक है, शी टीचेस लेसन टू ऑल दोज बॉयज। उसने बहुत ही मतलब इट मीन्स व्हाट हैपन कि जो वो पार्टीमैन था दैट वाज वेरी कंसर्न्ड पर्सन। उसने बोला मैं ठीक कह रहा हूँ ना छोटी बिटिया, मतलब गर्ल वॉट एवर। पापा शोव द क्लोथ इन टू द इंजरी एंड लीजल विंस रेदर देन आंसर। ओके, तो जो उसके फादर थे ही वॉज जस्ट क्लीनिंग हर इंजरी, और जो लीजल थी उसने आंसर देने के बजाय उसके मुंह से क्या आवाज़ निकली, जैसे मेड अ नॉइज और फेशियल एक्सप्रेशन दैट शो दैट शी वॉज इन अ पेन एंड ट्राइंग टू हाइड, मतलब वो उसको पेन हो रहा है बट शी वॉज ट्राइंग टू हाइड इट। इट वॉज हैंस हु स्पोक, क्वाइट सॉरी टू द गर्ल। बट देन उस पार्टी मेंबर का नाम है हैंस, उसने बोला कि बेचारी बच्ची, क्वाइट सॉरी का मतलब बेचारी बच्ची। There was the discomfort of the silence then, and then the partyman remembered his purpose. If you don't mind, he explained, I need to inspect your basement just for a minute or two to see if it is suitable for a shelter. Then उसके जो पार्टी मैन था उसको याद आया कि मैं मेरा क्या पर्पस था यहाँ आने का, तो देन ही वॉज आस्किंग द परमिशन हुबरमैन कि क्या मैं आपका बेसमेंट चेक कर सकता हूँ। आई वॉन्ट वी आर लुकिंग फॉर एनी शेल्टर, मतलब हम लोग उसमें कुछ शेल्टर यानी कि अपने इक्विपमेंट्स वगैरह रखने के लिए। पापा गेव लीजल नी अ फाइनल टैब, यू विल हैव अ नाइस ब्रूज देयर टू लीजल। Casually he acknowledged the man about them. Certainly, first door on the right, please excuse the mess. तब उसके पापा ने लीजल को फाइनल डैप का मतलब एक लास्ट तरीके से उसके नी को पूरा साफ़ किया। एंड उसने बोला कि तुम्हें तो अच्छी खासी चोट लगी है। ब्रूस मीन्स क्या होता है, इंजरी, चोट, तुम्हें तो अच्छी खासी चोट लग गई है। और ये करते करते उसने उनको रास्ता बताते कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आप यहाँ से राइट मुड़ जाइए, लेकिन फर्स्ट डोर ऑन द राइट एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ द मेस। लेकिन जो नीचे मेसी होगा, क्योंकि अक्सर बेसमेंट या स्टोर रूम कैसे होते हैं, मेसी होते हैं, तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा। I wouldn't worry, it can't be worse than some of the other I have seen today, this one, that's it. उसने बोला नो नो, इसके लिए आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, मैंने आज जितने भी स्टोर यानी जो भी देखा है, वॉट एवर वी हैव चेक द बेसमेंट, इतना ख़राब नहीं हो सकता, दैट्स इट। The longest 3 minutes in Huberman history. Now what minute? When that party person went to check the basement, that 3 minutes were the longest part. Okay, generally what happened, 3 minutes just pass in no time, it's a very short time, but that 3 minutes for the Huberman family was the longest one, because they were worried about the Max. Okay, so that's all for the today, and tomorrow I'll try to finish this lesson. Thank you.